بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ جیسے کہ آج آپ جانتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن ہے، رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع کا دن ہے۔ آج آخری گھڑیوں میں، جمعے کی آخری گھڑیوں میں یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنے بھی ہم سے جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، ہم سب کے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما کر، اگر آج ماہ رمضان المبارک کے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن کا یہ ایک خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ لوگ پچھلے دنوں میں پریشانیاں بھگت چکے ہیں، سالوں سال محتاجی کی زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی جس کی زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، تو آج رمضان مبارک کے آخری جمعے کے دن یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ 2 منٹ کا وظیفہ کرنے سے، یہ عمل کرنے سے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو۔ وہ جو شخص بھی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، اللہ پاک ہزاروں مہینوں کی راتوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آج اگر آپ لوگ اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو محسوس کر لیجئے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، ان برکت والے دنوں کو لاپرواہی میں مت گزاریے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرماتی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن کی فضیلت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن کتنا بابرکت اور کتنا مقدس دن ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن اللہ پاک کے حضور مصلی پر بیٹھ کر جو بھی حاجت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کے مہینے میں جو شخص اللہ پاک کے غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، ایسی زندگی جس میں مجھے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کی محتاجی کروں، میں صرف اللہ اللہ کروں، اللہ پاک کی عبادت کروں، اللہ پاک مجھے نواز دے۔ تو آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ لوگ لینا چاہیں۔ آج اس حاجت کی نیت کر کے آپ مصلی پر بیٹھیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعے کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج جمعے کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت لاتا ہے، اور قبولیت بھی اتنی کہ اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔
शाम को मांगता है तो रातों रात तकदीर बदल दी जाती है, रातों रात अमीर और कबीर बना दिया जाता है, रातों रात घर के हालात को बेहतर बना दिया जाता है। अगर आप भी रातों रात अपनी तंगदस्ती से जान छुड़ाना चाहते हैं तो 25 रमज़ान मुबारक आखिरी जुम्मे के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़कर देखिएगा। सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। ये एक दिन का वजीफ़ा आपके तमाम मसाइल का हल है। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने पैरों तक स्वाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसे बहुत से वज़ाइफ बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर मैं करती रहूँगी। अब अमल क्या है? किसी भी वक्त बावजूद मसले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पढ़ लें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक बार मेरे साथ भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप जो भी चाहते हैं, नया घर चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। अगर जो मकसद है, जो भी हाजत है, आप इसको अपने जहन में रख कर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करते हैं और फिर आप फौरी तौर अपनी आँखों को बंद कर लीजिएगा। यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है। लोग रब्बे करीम की बारगाह में मौजूद हैं और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या हाफिज़ या सलामों का वजीफ़ा है। आज आपने कोई भी आपको नज़र या हसद से मारता है, जिन्नात जादू से मारता है, आप पर नज़र बद बड़ी अरूज पर है, हसद बड़ी अरूज पर है। हर बंदा दूसरे को नज़र बद से ही मार रहा है, हसद से ही मार रहा है। आज आप इस अमल को करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाएंगे। बेशक अल्लाह पाक सबसे बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाला है, मेहरबान है। या हाफिज़ का मतलब है ए हिफाजत फरमाने वाले। या सलाम का मतलब है ए सलामती देने वाले। इन दोनों नामों को जब मिलाकर पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी सलामती आएगी इंशाअल्लाह, फिर कभी आप लोग जादू जन्नात के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को इन सब चीज़ों से बेनियाज फरमा देगा। या हाफिज़ या सलाम मुँह पर मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या हाफिज़ या सलाम पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हाफिज़ या सलाम मुँह मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह आप या हाफिज़ या सलाम का हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार का मतलब है ना कम ना ज़्यादा। आपने तवज्जो और ध्यान खलूस नियत के साथ या हाफिज़ या सलाम को पढ़ना है। आप अपनी औलाद के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने कारोबार के लिए, जवान बेटों के रिश्तों के लिए पढ़ लें। जहाँ जिसको जिस चीज़ की जिस मकसद की भी ज़रूरत है, रब की हिफाजत में इंशाल्लाह आ जाएंगे। जब आप लोग या हाफिज़ या सलाम को 11 बार पढ़ लें तो आपने दूसरे नंबर पर जो अमल पढ़ना है, ये अमल है, ये वजीफ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये वजीफ़ा इन लोगों के लिए है। अब ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो कि बेरोज़गार हैं, जिनके घर में फाके हैं,
दुखियारी माएँ बहनें हैं जिनके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते, घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा नहीं होता। आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का, मसाइल का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का, बंदिशों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आपने कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह से आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक तस्बीह आपने पूरी करनी है। जब आप लोग पूरी तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़ लें, इसके बाद आपने जो तीसरा अमल पढ़ना है वो अमल है या हय्यू या कय्यूम बेरहमाती का अस्तगीस का पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ें। इसके बाद चौथे नंबर पर आप लोगों ने जो अमल पढ़ना है वो अमल है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो आयात हैं जब कोई हमारा रिश्तेदार या कोई अजीज़ अकारब या मोहल्ले से या किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कलमात का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह पाक की तरफ से आए हैं और हमें अल्लाह के इस तरफ ही लौट कर जाना है। ये इतना पावरफुल कलमात हैं कि जब बंदा इन कलमात को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बड़ी राज़ी होती है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक की ज़ात कितनी राज़ी होती है। अगर आज अल्लाह पाक की ज़ात को राज़ी करना चाहते हो तो इन कलमात को ज़रूर पढ़ लें। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ लें, इसके बाद दोबारा वही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब आपका आज का अमल मुकम्मल हो गया। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आप लोगों ने फौरी तौर पर अपने हाथों को उठाकर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। आज की बड़ी रात, आज का बड़ा दिन है, आज की बड़ी रात है। पूरा दिन 24 घंटे मौजूद हैं। आज रात 10, 11, 12 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले। आप लोग इस अमल को पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने से आप लोगों को जो गैबी फ्यूज़ व बरक़ात नज़र आएंगी, जो गैबी मदद आपको मिलेगी, देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। जो बंदा अल्लाह पाक की राह में निकलता है और अल्लाह पाक की राह में जिहाद करता है या फिर कोई सदका करता है, कुछ भी करता है, अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी राज़ी होती है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत व वसअत के लिए अल्लाह के इनामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाह।